Hello, how are you? Students, last time we have done derivative of implicit function. And I have also discussed with you derivative of inverse trigonometric function. So I hope you have learned this formula of derivative of inverse trigonometric function. So what is the derivative of sine inverse x? 1 upon under the root 1 minus x squared. Derivative of cos inverse x minus 1 upon under the root 1 minus x square. Derivative of tan inverse x 1 upon 1 plus x square, and derivative of cot inverse x minus 1 upon 1 plus x square. So see the difference. Derivative of tan inverse x and cot inverse x, only difference is of minus. Same way, derivative of sine inverse x and cos inverse x, difference is only of minus. So t ratio which start with c, वो आपका minus होगा, ठीक है? And same way पे derivative of secant inverse x, 1 upon mod of x into under the root x square minus 1 in denominator, ठीक है? And cosecant inverse x, again minus of same situation, 1 upon under the root, 1 upon mod of x into under the root x square minus 1. Okay, students, so if you have read or done these formulas, please, I will take one or two important questions related to derivative of implicit function. Implicit function, you all know the relationship between x and y when it is not possible to find the value of y in terms of f of x, then such type of functions are called implicit. See here, y into under the root 1 minus x square plus x into under the root 1 minus y square equal to 1. अब बेटा अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि पहले y फाइंड आउट करो तो not a possible job for you. ठीक है, this become difficult because one y is here and another one is in under root. Okay, students, so from here you can't find the value of y easily. So we will take the help of, again, you know how to find the derivative of implicit function. So there are again here two approaches to solve this. One is directly to differentiate this equation 1. This equation 1, I have written here 1 with respect to x, as usual. And then use product rule, y into derivative of this plus second into derivative of first, and same way पे x into derivative of this plus this into derivative of x equal to 1 का derivative 0, and then simplify. You will get this answer after simplification little bit. But this approach is little bit lengthy as compared to what I have taken here. See, with the help of substitution, this become very easy. Let y equal to sine theta and x equal to sine. Y I have taken, you can see in later subject, later on, another steps. So from here, y sine theta means theta sine inverse y, and x equal to sine phi means phi equal to sine inverse x. So y sine theta 1 minus sine square phi, x sine phi 1 minus sine square theta equal to 1. Just substitute the value. You know 1 minus sine square phi cos square phi 1 minus sine square theta, that is cos square theta. This one is 1 minus y. Sine square theta means cos square theta. So now let us see, this becomes sine theta cos phi and cos theta. This one is a theta, please. Cos theta sine phi. So आपके पास, now you know this formula. This one is the formula of sine theta plus phi, addition formula. Sine theta plus phi equal to 1. And now you can find the inverse from your theta plus phi equal to sine inverse 1. And theta is nothing. Change कर दो जो आपने ये just simplification के लिए था काम. So this becomes sine inverse y plus sine inverse x. तो बेटा अल्टीमेटली हमने क्या काम किया, वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हमने वर्कआउट किया इसमें. जैसे वहां पर कुछ इस तरह के फार्मूले होते थे, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स बाहर लिखा होता था,
तो हम उनको सिंप्लीफाई करते थे। तो लगभग वही अप्रोच मैंने यूज की। अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती होगी तो यू कैन डू दिस। सो थीटा प्लस फाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 1 इज नथिंग बट पाई बाई 2। और अब देखो इसको इजिली आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन इनवर्स वाई, यू नो साइन इनवर्स वाई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वही फार्मूला लगेगा। साइन इनवर्स समथिंग 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस समथिंग स्क्वायर इनटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि अभी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले दे दिए गए हैं। तो ये दोनों का मिक्सचर था, या इनवर्स भी है और आपके पास इम्प्लीसिट भी है। तो 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर हो गया? मैं फिर कह रहा हूँ साइन इनवर्स समथिंग, इसको समथिंग लिया। अगर एक्स होता तब तो सिंपल 1 अपॉन अंडर द रूट माइनस एक्स स्क्वायर आना था जैसे यहाँ आए, लेकिन ये वाई है तो इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स भी आए। तो यहाँ से बेटा आराम से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ये टर्म दूसरी साइड जाएगी, नेगेटिव होगी और 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट न्यूमरेटर। सो ये आपको प्रूव करना था। दिस वन इज द रिजल्ट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर आप इस अप्रोच से करेंगे तो बहुत इजी पड़ेगा। सेकंड से यू कैन ट्राई होम, ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा डिफरेंस। हियर वन मोर क्वेश्चन, sin y इक्वल टू x इंटू कॉस a प्लस वाई। मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट वन क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आ चुके हैं, वहां से उठाए। तो नाउ सी हियर, शो दैट dy अपॉन dx इज cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन cos a। अगेन बेटा आपका मोटिव सिंपल वो नहीं रहना चाहिए कि यहाँ से y निकाला जाए, क्योंकि y आप निकाल भी नहीं पाएंगे। इम्प्लिसिट इक्वेशन बन रही है और आंसर भी इन टर्म ऑफ y है। तो बेटर है एज यूजुअल डिफरेंशिएट कर लो, जैसे भी ये 1 आ गया। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ साइन y दैट यू नो, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं तो cos ऑफ y इनटू dy अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ साइन y। ओके बेटा, डेरिवेटिव ऑफ साइन y, यहाँ साइन ही लिख दिया गया है, नॉट साइन, आपने कॉस लिखना है इसमें। सो दिस बिकम cos y dy अपॉन dx। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन y दैट इज cos y dy अपॉन dx, एंड हियर x into cos a plus y, x into derivative of cos and plus cos a plus y into derivative of x। तो here also ये कैंसिल होके क्या आएगा यहाँ, cos y dy upon dx, and this become now x as usual, derivative of cos minus sine of a plus y into cos of something sine of something minus as usual bahar, and into derivative of something, something means derivative of a that is 0 and derivative of y dy upon dx। कंपोजिट रूल अब आप जानते हैं, कंपोजिशन बीच बीच में चलती रहेगी बेटा। प्लस cos of a plus y into derivative of x that is 1। Clear? So I hope you have. Okay. So cos y dy upon dx minus x into sine a plus y 0 plus dy upon dx plus cos of a plus y, as usual you can see। ठीक है, ये हमारे पास आए। Now see, combining the term which contain dy upon dx. One term is this, another term is this. So transfer this term also left hand side, and here dy upon dx, and right here sin y means cos y. Please make this correction. Cos y plus x into sin a plus y dy upon dx is equal to cos a plus y। ठीक है, ये माइनस का प्लस हो गया। एंड नाउ दिस बिकम dy upon dx, in place of sin y here is cos y। So cos of a plus y upon cos y plus x into sin a plus y। ठीक हो गया? We got this point, and now अब देखो dy upon dx तो निकल गया है बेटा यहाँ पर, लेकिन मेन फोकस अब हमारा किस पे होना चाहिए कि मेरे को चाहिए क्या, मेरे को इस x को एलिमिनेट करना है। तो इस x की वैल्यू बेटा मैं जो गिवन है स्टार्टिंग में, वहां से इसकी वैल्यू ये ध्यान रखना है, यहाँ हमारे पास cos y आएगा इन प्लेस ऑफ sin y। ठीक है, तो
ओके, ये देखिए x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या आएगी, साइन y अपॉन कॉस a प्लस वाई। एक्स इज साइन y अपॉन कॉस a प्लस वाई। ये वैल्यू मैं आगे सब्स्टिट्यूट करूंगा। ये देखिए x की जगह साइन y अपॉन कॉस a प्लस वाई। तो इस पे बेटा फोकस करेंगे। और अब आप एलसीएम लेंगे, नीचे कॉस ए प्लस वाई एलसीएम आएगा, तो यहाँ बनेगा कॉस ए प्लस वाई। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि दिस वन इज कॉस वाई, हियर इट आल्सो बिकम cos y, this one is cos y, and now cos y into cos a plus y plus sin y into sin a plus y. So this you know, यहाँ मैंने फार्मूला ठीक लिख दिया है, तो cos a plus y minus y, ठीक है। पहला सेकंड फार्मूला है, मतलब सब्ट्रैक्शन का सेकंड फार्मूला, cos x minus y, cos x cos y प्लस sin x sin y, वही फार्मूला लगाया। अब बेटा होगा क्या, y से y कैंसल और ये बच गया cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन cos स्क्वायर a। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस आपने एक ही काम करना था, जो जस्ट x को एलिमिनेट करना था लास्ट में, बाकी नथिंग इज न्यू। और एक आपने फिर देखा ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, ठीक है, इसका बेटा ध्यान रखना है। जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं, साथ साथ पॉज करके बेटा अपने आप इन क्वेश्चन को नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर बुक एज यूजुअली, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिंपल अप्रोच बेटा, इफ यू नो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला डायरेक्ट, तो दिस इज नथिंग बट 2 tan इनवर्स x। अगर अभी आपको याद होगा, मैंने एमसीक्यू टेस्ट में भी दिया था, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज 2 tan इनवर्स x। हाँ, नहीं याद रहता तो आपको फिर ट्रिग्नोमेट्री सिंपल याद होनी चाहिए कि पुट x इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। ये बन गया देखो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा एंड 2 थीटा, थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स x। तो ये आ गया देखो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स। या तो आपको ये सीधा फार्मूला पता होगा, डायरेक्ट लिख लीजिए, नहीं है तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन। एंड नाउ यू नो द फार्मूला, dy अपॉन dx, 2 आउटसाइड रहेगा बेटा कांस्टेंट, एंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x यू ऑल नो, दैट इज 1 upon 1 plus x square, so that you know. So next is y equal to tan inverse। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लियर हो गया। इसी तरह से और भी फार्मूले हैं। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ कॉस इनवर्स बनेगा, तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं जस्ट आपको बुक में दिखा देता हूँ इन्हीं चीजों को। ये देखो, ये y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस चीज का फार्मूला। आपके पास 2 tan इनवर्स x का फिर से, सो 2 tan इनवर्स x का है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बिल्कुल उसी वे से इसका भी वही है, बोलने का मतलब दिस बिकम 2 tan इनवर्स x। तो डेरिवेटिव जैसे ही निकालेंगे तो वही आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम वे पे बेटा अगर इसको आप देखें, तो x को अगर tan थीटा पुट करेंगे, x की जगह अगर आप tan थीटा पुट करेंगे, तो क्या बनेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, मतलब tan 3 थीटा का फार्मूला कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 3 थीटा मीन 3 tan इनवर्स। तो देखो कितने इजी है। होने का दिस वन इज द रिवीजन ऑफ सिंपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आंसर इसका क्या आ जाएगा, यही हो जाएगा, बस 2 की जगह क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, और इसी का आंसर बन गया 3 अपॉन दिस। सेम वे पे अब अगर आप इस क्वेश्चन के पे ये कहे कि क्या पुट होगा कि सर ये तो कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, यस डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, लेकिन अगर आप इस एक्स स्क्वायर की जगह बेटा सिंपल cos 2 थीटा पुट करते हैं तो आपको बेनिफिट हो सकता है। लेकिन क्या बेनिफिट होगा, फिर वो अंडर रूट में आ सकता है। अब आपको यहीं पर थिंक करना है, 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। पर प्रॉब्लम कहाँ आएगी आपके पास, किस में प्रॉब्लम आ जाएगी, एक्स स्क्वायर को ही पुट करेंगे, नॉट सिंपल एक्स, इसको पुट करेंगे अब एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा। अगर एक्स को पुट करेंगे तो ये होगा,
तो फिर अगर एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे cos 2 थीटा, और फार्मूला तो मिल जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। और बेनिफिट क्या होगा? You know the formula of 1 minus cos 2 theta, that is 2 sin square theta, and also नीचे 2 cos square theta, 2 से 2 कैंसल। अब क्या बनेगा? sin square थीटा अपॉन cos square theta, tan square theta बन गया। अब आपके लिए प्रॉब्लम क्या रही कि tan बन गया, मेरे को तो चाहिए क्या था? साइन चाहिए था अंदर। तो इसका मतलब ये इस सब्स्टिट्यूशन से आपका काम नहीं चला, फिर और क्या पुट कर सकते हैं? व्हाट यू कैन सब्स्टिट्यूट। तो लाइक दिस अब आपको यहाँ डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन देखो, इसमें तो इस काम से इसमें हमने क्या सब्स्टिट्यूशन की? tan थीटा। तो बेटर है बेटा, फिर ये सब्स्टिट्यूशन कब यूज होती? ये सक्सेस हो जाती अगर यहाँ अंडर रूट होता, तो तब हमारे पास और बाहर tan इनवर्स होता। तो अभी नहीं है, तो इसलिए यहाँ बेटर वे क्या रहेगा? देखो, हर चीज आप ये सोचेंगे तो कुछ करने के बाद ही आपको पता लगेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ जी ये है, थोड़ा सा ही है, मतलब जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही बेटर रहेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए, मेरा बोलने का मतलब फिर इसमें क्या पुट करें। अगर इसी ऊपर वाले क्वेश्चन से आपको आइडिया लगे, तो जैसे ये फार्मूला आपका बना, ये किसका फार्मूला बन रहा है? 1 माइनस कॉस इनवर्स ये cos 2 थीटा का बन रहा है। अब अगर ऐसा ही आप यहाँ करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? थिंक ऑफ दैट कि क्या मैं ये वर्क कर सकता हूँ या नहीं इसमें। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? अगर ठीक है कॉस बना दो, फिर cos 2 थीटा का बना लो, और कॉस कैन बी फर्दर चेंज, क्योंकि देखो यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। अब अंदर आप कहें कि सर एक्स को एक्स tan थीटा पुट करके हम इसको क्या बना लेते हैं? cos 2 थीटा बना लेते हैं, तो बेटा बिल्कुल सही है, यू कैन डू दैट वर्क। अब अगर आप इस काम को करते हैं तो ये बनेगा फिर साइन इनवर्स, मैं फिर कह रहा हूँ ऊपर की तरह ही, जैसे इसमें हमने cos एक्स को क्या पुट किया था? tan थीटा, तो इसको भी अगर x को हम tan थीटा पुट करेंगे, मतलब x अगर आप tan थीटा पुट करेंगे, तो व्हाट यू विल गेट, आपको मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और दैट इज नथिंग बट क्या मिलेगा? cos 2 थीटा। और बेटा cos 2 थीटा मिला, तो cos 2 थीटा को कैसे करेंगे? इसको साइन बनाएंगे, तो साइन इनवर्स यू नो साइन पाई बाई 2 माइनस, अब बोलने का मतलब सारा रोल बेटा ट्रिग्नोमेट्री का, पाई बाई 2 माइनस 2 साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट cos। अब क्या होगा? इनवर्स एंड साइन कैंसल, दिस सिंपली बिकम पाई बाई 2 माइनस 2। थीटा क्या था आपके पास? x tan थीटा पुट किया हुआ है हमने, x आपके पास tan थीटा है, तो इट मीन्स ये 2 tan इनवर्स x बन जाएगा, 2 tan इनवर्स x, और इसका डेरिवेटिव बताता है पाई का डेरिवेटिव 0 बन जाएगा, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लो, हल्की सी चेंज करने से क्वेश्चन में ट्विस्ट आ जाता है। तो लाइक दिस यू कैन डू ऑल दिस क्वेश्चन इसी तरह से बेटा। अब अगले वाले क्वेश्चन को भी आप थिंक, मैं नहीं सभी के हिंट अगर दे देता हूं तो फिर आप लोगों ने क्या सोचना है? ट्राई टू थिंक। ठीक है, क्या पुट कर सकते हैं? एक्स को इस वक्त tan थीटा पुट करो। देखो एक सिंपल वे मैं जरूर बता देता हूँ, जब भी टर्म ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो कोशिश करो पुट x इक्वल टू साइन थीटा या cos थीटा। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो पुट x इक्वल टू ए tan थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। मतलब जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, मतलब वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, या cos थीटा भी कर सकते हैं। लेकिन जब प्लस का साइन हो तो आपकी कोशिश होनी चाहिए पुट x इक्वल टू tan थीटा, सो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला cot भी पुट कर सकते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकेंट स्क्वायर थीटा। अब जैसे यही है 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखे तो ये एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ साइन थीटा ये बन जाएगा, साइन पुट करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, और ये साइन 2 थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स कैंसल 2 थीटा, तो 2 थीटा मीन 2 साइन इनवर्स x। तो प्लीज यू कैन डू। ठीक है,
तो चलिए मैं वापस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, इस टाइप के क्वेश्चन है। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू पीपल, देखो डिफरेंस है, अब जस्ट आइडिया दूंगा, बाकी आप करते रहेंगे। अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए 1 माइनस रूट एक्स रूट ए। अगर आपको कहीं ना कहीं टेन थीटा प्लस फाई का फार्मूला हो तो याद आ रहा होगा, टेन थीटा प्लस टेन फाई अपॉन 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई। तो क्या करो, रूट एक्स को टेन थीटा और रूट ए को टेन अल्फा या फाई पे ठीक है। तो यहाँ से x बनेगा टेन इनवर्स रूट एक्स और अल्फा बनेगा टेन इनवर्स रूट ए। ध्यान दे ये रूट ए कांस्टेंट है, इसका मतलब टेन अल्फा भी कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो टेन इनवर्स दिस, और ये फार्मूला बन गया टेन थीटा प्लस अल्फा। नोट दी, आप लोग क्या करेंगे, पॉज दी वीडियो, नोट दी स्टेप एंड डू, ठीक है। कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आई एम टॉकिंग विद यू। सो टेन इनवर्स टेन थीटा प्लस अल्फा, दैट इज थीटा प्लस अल्फा, एंड हेंस y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस, और देखो टेन इनवर्स एंड टेन कैंसिल हुआ, थीटा प्लस अल्फा, थीटा इज नथिंग, टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस टेन इनवर्स रूट ए। अब बेटा ये कंपोजिट फंक्शन बना, सिंपल टेन इनवर्स एक्स नहीं है, तो इसको आपने हमेशा वैसे ही पढ़ना, जब डेरिवेटिव लेना है तो टेन इनवर्स समथिंग 1 upon 1 plus something square into derivative of something, और इसका डेरिवेटिव जीरो, बिकॉज मैंने क्या बताया, tan इनवर्स रूट ए, this one is a constant, derivative of constant is zero, so you will get under root x का डेरिवेटिव 1 upon 2 root x, under root x means x की पावर 1 by 2, 1 by 2 into x raised to power minus 1 by 2, ये बनेगा आपके पास ऐसे, x raised power 1 by 2 का जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1 by 2 into x raised to power 1 by 2 minus 1, means 1 by 2 into x raised to power minus 1 by 2, और उसी को लिखेंगे हम 1 upon 2 root x। तो यहाँ माइनस लगा लेना बेटा, साथ में वो लगाना, ठीक है ना। ये केयरलेस मिस्टेक होती है सारी, फिर लास्ट में माइनस भी आएगा, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव है ना, देखो क्या आया, पावर आपकी 1 by 2 है तो 1 by 2 से माइनस 1 करेंगे तो माइनस, नहीं यहाँ नहीं आएगा माइनस, सॉरी यहाँ आया माइनस, वो नीचे चला गया, ठीक है, डिनोमिनेटर में तो प्लस ही आएगा, 1 upon 2 root x, नो नीड टू यूज दिस साइन, क्योंकि माइनस पावर है तो वो तो नीचे आ गई, इसलिए अंडर रूट एक्स नीचे लिखे। ओके, तो दैट्स ऑल। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन है, देखो रूट एक्स प्लस रूट है, लेकिन किसने किया, सब्स्टिट्यूशन। अदरवाइज आप कंपोजिट से भी कर सकते हैं, इसको यू लेट करो और फिर करते चलो, बहुत लेंथी जाएगा, हो जाएगा tan inverse u and derivative of u, complicated, ठीक है। ओके, वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बुक में भले ही ना मिले लेकिन कहीं शायद मिसलेनियस में होगा तो मेरे को ध्यान नहीं है, और एक बार इस टाइप का क्वेश्चन भी पुट किया गया, और ये जनरली टेस्ट वगैरह वाले ज्यादा पूछते हैं, जैसे जेई का टेस्ट होगा या एनी अदर। तो देखो ये क्या है, 3 cos x minus 4 sin x अपॉन, बोलने का मतलब बेटे दिस कैन बी रिटन cos इनवर्स 3 by 5 cos x minus 4 by 5 sin x, ठीक है। डायरेक्ट करना चाहेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इजी बना, हम क्या करेंगे, इसको 3 by 5 को cos अल्फा, ये है देखो, ये ट्राइंगल बनाई मैंने, 3 by 5 मेरा cos अल्फा है, तो नेचुरली 4 by 5 जो है वो sin अल्फा होगा, क्योंकि ये 5 और 3 है, तो तीसरी साइड क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल की 4, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3 4 5, तो यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था cos अल्फा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, sin अल्फा, तो 4 by 5 sin अल्फा ले, अल्फा क्या बनेगा, cos इनवर्स दिस, और यहाँ से इसको अल्फा ही कहे तो साइन इनवर्स 4 by 5 भी बन सकता है। तो बोलने का मतलब, चलिए इसकी तो बाद में देखेंगे जब आपको जरूरत पड़ेगी, अभी बात करते हैं, ये बना, तो इसकी जगह मैंने कहा cos अल्फा और इसकी जगह sin अल्फा, तो ये फार्मूला बन गया cos अल्फा cos x माइनस sin अल्फा sin x, तो ये किसका, cos अल्फा प्लस x को या cos x प्लस अल्फा, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। तो ये आपका cos x प्लस अल्फा का फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, इसीलिए बार बार +1 में आपको कहा जाता था बेटा लर्न दी फार्मूला, लर्न दी फार्मूला, दिस वन इज द रीजन, cos इनवर्स एंड cos कैंसल x प्लस अल्फा, अब अल्फा को एक लिख लो, चाहे sin इनवर्स लिखो या cos इनवर्स लिखो, सो x प्लस cos इनवर्स 3 by 5, अब डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 आएगा, ये तो कांस्टेंट है 0, ये लिखा हुआ है ना, इंटरेस्टिंग। तो देखो अगर आपको ये सब्स्टिट्यूशन आती होगी
तो आप इजीली कर पाएंगे। अदरवाइज बेटा बहुत लेंथी अप्रोच है और कोई लंबा जाएगा क्वेश्चन, और जरूरी नहीं है कि आप सिंप्लीफाई भी कर पाए। क्या कि इसको u लेट कर लो, cos इनवर्स u का डेरिवेटिव यू कैन फाइंड 1/√1 माइनस यू स्क्वायर माइनस लगा के, और उसके बाद u का विद रिस्पेक्ट टू x भी आता है निकालना। बट वही है कि जो सिंप्लीफाई आंसर की मैं बात कर रहा हूँ, अब जैसे सिंप्लीफाई आंसर 1 आया, शायद वो ना मिले, और कहीं चॉइस में तो आपको अगर 1 दिखेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। हाँ, नहीं प्रूव करने को पूछा है तो दैट इज ए सेपरेट इशू। सेम यार, ये देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। अभी जो मैं वहां बता रहा था ना sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली केस, तो उसमें भी ऐसा काम कर रहा था मैं, एक्स स्क्वायर को cos 2x। तो देखो यू नो द फार्मूला ऑफ 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x बाई 2, माइनस होगा तो 2 sin स्क्वायर, 2 से 2 कैंसर, स्क्वायर से स्क्वायर, cos अपॉन sin cot बन गया, अंडर रूट है देखो। अब cot x बाई 2 इसका tan बना, tan 90 माइनस थीटा, tan इनवर्स एंड tan कैंसल, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई। ओके, so from here y equal to cos inverse x minus x raised to power minus 1 x plus x raised to power minus 1। तो cos inverse बेटा इसको देखो लिखने में ऐसे है, थोड़ा सा आपको लगता है कि डिफिकल्ट हो गया होगा, अदरवाइज नहीं। ये देखो x स्क्वायर माइनस 1, और ये वही क्वेश्चन बन गया बुक का है, देखो cos इनवर्स माइनस बाहर, cos इनवर्स माइनस थीटा, यू नो क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, तो इसलिए माइनस को बाहर लगा के पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। ठीक है, अब क्यों किया ये आपको पता है, डायरेक्ट लिख रहा हूं तो 2 tan इनवर्स x, या फिर पुट करके कर, ये देखो ये आया पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। तो अब बार बार नहीं कहूंगा, ये आपको क्लियर कर दिया। So dy upon dx that is equal to minus 2 upon 1 plus x स्क्वायर, पाई का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। देखो यहाँ भी आपके पास क्वेश्चन सीकेंड इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस। अब बेटा देखो देखने में क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर मैं सच में इसको यहीं तक दिखाता रहूं अभी आप लोगों को इस क्वेश्चन को, तो आप बोलेंगे सर बड़ा टफ सा क्वेश्चन दे दिया। तो घबराना नहीं, अगर ध्यान रहे ये सीकेंड इनवर्स है। देखो यहाँ एंगल रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 है, यहाँ उल्टा। तो अगर ये उल्टा है तो ये कॉस इनवर्स में चेंज हो जाएगा, सीकेंड इनवर्स क्या बन जाएगा रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। फार्मूला ये जानते हैं आप, सीकेंड इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स पड़ा हुआ है। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि ये एंगल सेम हो गया, और अगर ये एंगल सेम है तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स दैट इज नथिंग बट इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये बेटा पाई बाई 2 बन गया, ये देखिए फॉर्मूले से, इसका डेरिवेटिव 0। कि क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन देखिए विद इन वन स्टेप। अब आपको मैं इसको एज ए एमसीक्यू दूंगा, आप सोचेंगे हाय सर कैसे करना, इतना लंबा क्वेश्चन दिया होगा, आप लगेंगे इसका डेरिवेटिव कहीं कुछ सब्स्टिट्यूशन करने कुछ भी है, लेकिन जो सिंपल वे से करेगा वो देख सकते हैं। क्या किया मैंने, सीकेंड का कॉस इनवर्स बनाया, एंगल सेम हो गया तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, तो डेरिवेटिव इज 0। ठीक है, तो आगे चलिए बेटा वन मोर क्वेश्चन जस्ट, उसके बाद एंड। सो अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज में है, तो इसमें भी सिंपल वे से पुट x इक्वल टू साइन थीटा एंड y इक्वल टू साइन। बेनिफिट हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, अंडर रूट खत्म हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर फाइव, अंडर रूट खत्म हो गया कॉस फाइव, ए साइन थीटा माइनस फाइव। ठीक है, इसको अब क्या लिख लें, कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव साइन थीटा माइनस साइन फाइव, नीचे आ गया इक्वल टू ए। और बेटा इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो प्लस 1 क्लास में करते थे सी डी फार्मूला, 2 cos थीटा प्लस फाइव बाई 2 cos थीटा माइनस फाइव बाई 2। ये सेकेंड फार्मूला है सी डी में, साइन सी माइनस साइन डी, ये थर्ड था। तो ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी। अब बेनिफिट क्या हुआ यहाँ से, क्या cos से cos वाली टर्म कैंसिल हो गई, 2 से 2 कैंसिल,
cos theta minus pi by 2 upon sin theta minus pi by 2 equal to a. Means cos upon sin is nothing, cot theta plus pi by 2 equal to a. So theta plus pi by 2 equal to cot inverse a. 2 भी दूसरी साइड चला जाएगा तो 2 cot inverse a. So this become sin inverse x plus sin inverse y equal to 2 cot inverse a. और अब आप डेरिवेटिव निकालो आराम से, ठीक है. यू कैन डू. क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन, आगे नहीं मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये आपके लिए छोड़ दिया कि अब आप इजीली कर सकते हैं. 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स वाई का 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर. लिखना है तो मैं यहाँ लिख दूं, बट आप लोगों के लिए छोड़ा था कि आप अभी कुछ किया कर. 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर द रूट साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये 0. तो यहाँ से बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ये टर्म दूसरी से आ जाएगी माइनस हो जाएगी. तो आपके पास जो आंसर आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे. दिस वन इज द आंसर. ये आपने कर लेना. सो थैंक यू वेरी मच. प्लीज डू ऑल द क्वेश्चन, कंप्लीट करिए, ठीक है. रिवाइज करिए. अगर आप रिवाइज करते हैं तभी बेनिफिट होगा, अदरवाइज नहीं. तो मेरी ओर से जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज है इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है. आगे मैं आपको और लूंगा, लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन करेंगे, लॉगरिथम के कुछ फार्मूला बताऊंगा, कुछ बेसिक समझाऊंगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बताऊंगा, उसका डेरिवेटिव लूंगा, ठीक है. तो प्लीज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, ठीक है. नहीं तो फिर वही हालत होगी जो अभी टेस्ट में आप लोग उस दिन देख रहे थे कि कैसे डिफिकल्टी होगा, क्योंकि अगला जब भी टेस्ट होगा अब इसी का होगा, डेरिवेटिव का ही होगा, ठीक है. सो बी रेडी. नेक्स्ट मंडे के लिए जो है आपके पास जो टेस्ट है, ये जितना सिलेबस हो जाएगा यहाँ से डेरिवेटिव का, क्योंकि मैंने देखो आपका रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट हो गया, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का टेस्ट हो गया. तो अब नंबर आ रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. तो अभी 2 दिन में जितनी हो जाएगी आज करवाऊंगा, अगला एक लेक्चर है, रिकॉर्डिंग है, और उसके बाद मंडे को टेस्ट हो, ठीक है. तो जितना लगभग बेसिक अब आपको बताया जा रहा है इनको अच्छे से याद रखिए, और डेरिवेटिव कॉम्प्लिकेटेड दिखेंगे लेकिन कैसे सिंपल हो, ठीक है. तो ये काम अब आपका है. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट.